So there are 4 schedules of reinforcement. You should know this by heart because this is the favorite question for the examiners, right? So they can give you an example और पूछ सकते हैं ये कौन सा स्केड्यूल है रीइंफोर्समेंट का, ये बता सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि किसमें ज्यादा एक्सटिंक्शन होने के चांसेस हैं और किसमें कम एक्सटिंक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है. सो वी हैव 2 schedules priorly and that is divided into 2. So we have the ratio scale and we have the interval scale, ठीक है. By ratio we means responses, number of responses, ठीक है. R to R, which means ratio is equals to responses. This is a way of remembering it. Ratio is equals to number of responses and R, which stands for ratio and responses. Okay, so here then interval, when we talk about interval, by interval we means time interval. Okay, and in this time interval we again have variable interval and we have fixed interval. Okay, so in variable ratio and we have a fixed ratio. These ratio scales and these interval scales both are further divided into variable and fixed. Variable means changing and fixed means static. Okay, so when we talk about fixed ratio, okay, so the reinforcement is given after a fixed number of responses have been made. For example, taking Skinner's experiment, उसको जो रैट है उसको चाहे वो अगर वो 20 रिस्पॉन्सेस एमिट करता है उसके बाद ही उसे कुछ खाने को मिलेगा. ओके, और अगर यही एग्जाम्पल वेरिएबल रेशियो के पर्सपेक्टिव से लें तो रैट को तभी कुछ खाने को मिलेगा मे बी आफ्टर 19 responses he may get food. After 25 responses he may get food. After 35 responses he may get food. After 40 responses he may get food. That means there is no fixed number of responses after which the client will expect to be reinforced. So the number of responses on which the client will be reinforced keeps on changing and it depends on the therapist or the experimenter that how we have to do it. Okay, so it is an example of variable ratio. Fixed ratio when reinforcement is given after a particular number of responses have been made. 20 हर 20 रिस्पॉन्स के बाद रैट को खाना मिल जाएगा. वेरिएबल रेशियो में कभी उसको 15 रिस्पॉन्सेस के बाद मिलेगा, कभी उसको 20, कभी उसको 25, कभी उसको 40. इसका कोई भी फिक्स्ड स्केड्यूल नहीं बनेगा, ठीक है. This is variable ratio. Then coming to variable interval and fixed interval. Variable interval में time period, एक time period होगा जिसके बीच जाने के बाद आपको reinforcement मिलेगा. कभी रैट के उसमें कभी आपको reinforcement 1 दिन बाद मिलेगा, कभी 2 दिन बाद मिल रहा है, कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, कभी 6 दिन. So there is no fixed time limit for it कि आपको reinforcement कब मिलेगा. Fixed interval में कि आपको reinforcement जो मिल रहा है वो एक fixed time period पे मिल रहा है, ठीक है. मेरी सैलरी my salary is coming after on 1st of every month. That is an example of fixed interval. रैट को हर 1 दिन के बाद खाना मिल रहा है स्किनर के एक्सपेरिमेंट में, ठीक है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड इंटरवल.
Now if you can see this box here, it is very important. I would request you all to take a note of it if you have not done so far, because this is the arrangement कि सबसे ज्यादा एक्सटिंक्शन, सबसे कम जो है एक्सटिंक्शन रिस्पॉन्स का, वो वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल में होगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को नहीं पता कि उसे रीइंफोर्समेंट कब मिलेगा. ठीक है. सिमिलरली हाँ मैम प्लीज, मैम रिपीट, मैम प्लीज. सॉरी मैम एक बार ये फिर से बता दीजिए कैसे रीड करना है. मैम एक बार ये फिर से बता दीजिए कैसे रीड करना है वेरिएबल रेशियो. VR stands for variable ratio. VI stands for variable interval. FR stands for fixed ratio. FI stands for fixed interval. Okay. So here what is happening is, वो कह रहे हैं कि resistance to extinction का ऑर्डर क्या रहेगा, किस स्केड्यूल, किस रीइंफोर्समेंट के स्केड्यूल में आपको रीइंफोर्समेंट का एक्सटेंशन, रिस्पॉन्स का एक्सटेंशन कौन से स्केड्यूल में सबसे ज्यादा रहेगा और कौन से स्केड्यूल में सबसे कम रहेगा. तो शुरुआत हुई है सबसे कम रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन होगा वेरिएबल रेशियो में. रिस्पॉन्स एक्सटिंक्ट होने के चांसेस वेरिएबल रेशियो में कम है, सबसे कम है. ठीक है. वेरिएबल रेशियो में सबसे कम होगा. उसके बाद वेरिएबल इंटरवल में रिस्पॉन्स का एक्सटिंक्शन कम होगा, क्योंकि जहां पे अनसर्टेनिटी है कि हमें नहीं पता कि रीइंफोर्समेंट कब मिलेगा, जहां पे वेरिएबिलिटी है, जहां पे चेंजिंग है रीइंफोर्समेंट्स का, वो वाले सबसे पहले रहे, वो वाले को मुश्किल होगा हमें वो वाले रिस्पॉन्सेस को एक्सटिंक्ट करना, बिकॉज ऑर्गेनिज्म के पास ये उम्मीद हमेशा रहेगी, चलो अच्छा अभी मिलेगा, अभी कुछ आएगा, अभी कुछ खाने को मिलेगा, अभी पैसा मिलेगा, अभी खाना मिलेगा. तो दिस इज वेरिएबल रेशियो and variable interval. So on the first, सबसे पहला resistance to extinction variable ratio, फिर variable interval, फिर fixed ratio और फिर fixed interval. ठीक है. Any doubts? मैम वेरिएबल रेशियो का एग्जांपल हो गया ना जैसे मैम बेटिंग. वेरिएबल रेशियो का Sorry? एग्जांपल हो गया ना जैसे बेटिंग. वेरिएबल रेशियो का एग्जांपल बेटिंग हो गया ना. वेरिएबल रेशियो का Betting. एग्जांपल बेटिंग हो Okay. गया ना. यस मैम. Explain it further. यस मैम. बेटिंग में मैम पता नहीं होता है कि बेटिंग में मैम पता नहीं होता हॉर्स है कि बेटिंग जैसे रेसेस हॉर्स होती बेटिंग, हैं जैसे जिसपे वो सट्टेबाजी होती है जैसे रेसेस होती हैं जिसपे सट्टेबाजी होती है और जैसे जैसे क्रिकेट में, कसिनोज में जो मशीन और जैसे कसिनोज में जो मशीन, कसिनो में जो मेरे गेम्स हिसाब होते से हैं, वेरिएबल रेशियो होते हैं क्योंकि उसमें वो प्रेडिक्शन नहीं मेरे होती. हिसाब से वेरिएबल रेशियो होते कि हैं कब क्योंकि उसमें उन्हें प्रेडिक्शन नहीं होती. रीइंफोर्समेंट मिलेगा, है ना, यस मैम कब वो जीतेंगे. कितने रिस्पॉन्सेस के बाद. यस मैम कब वो हाँ जीतेंगे. जी. रिस्पॉन्स उनके हाथ में ही होता है हाँ जी. देना. इट्स हाँ विद इन जी द मैम ऑर्गेनिज्म. रिस्पॉन्स हाथ में होता है बट हाँ जो जी मैम रिस्पॉन्स हाथ में होता रीइंफोर्समेंट है, है बट जो विनिंग है वो उनके जो हाथ में नहीं होता. हाँ, विनिंग रीइंफोर्समेंट है, उनके जो हाथ में विनिंग है, वो उनके ठीक हाथ में नहीं होती. है. ट्राई किया कसीनो वगैरह, बिकॉज मुझे आइडिया नहीं है, मैंने ट्राई नहीं किया और मैंने देखा भी नहीं है, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन मांगा. यस इट कुड बी एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल रेशियो, बिकॉज वी डोंट नो, द ऑर्गेनिज्म डज नॉट नो कब उसका चांस लग जाएगा. ठीक है. यस मैम जो बहुत ही अगर यस क्लोज मैम टू जो होम बहुत एग्जांपल ही देखे तो जब अगर ताश खेलते हैं क्लोज तो टू वो भी होम हो सकता एग्जांपल है. देखे तो जब हाँ, ताश जब खेलते हैं खेलते हैं तो वो भी हो एग्जैक्टली कि सकता हम है. रिस्पॉन्सेस तो कर ही जा रहे हैं, बट एक्चुअली हमें कब कुछ रीइंफोर्समेंट मिलता है वो वेरी करेगा. ठीक है. So again, there is a factor of unpredictability. We can say that it is an example of a variable ratio. ठीक है. मैम
मैम जो आपने बताए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंशन, मैम जो आपने बताए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंशन, जो फैक्टर था वो था मैम उस लेंथ ऑफ जो फैक्टर था वो था लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट। मैम उसके बाद लाइक सेकंड मैम उसके बाद लाइक सेकंड फैक्टर मिला नहीं था, मे बी वो आपको शायद कुछ डिवाइस में प्रॉब्लम थी, आपने डिवाइस चेंज की थी। मैम उसके बाद कोई फैक्टर है या डायरेक्टली डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट है? तो है एक्सटेंशन के, इट कैन नॉट बी वन, इट हैज टू बी मोर देन वन। लेट मी चेक। So there are varied factors। एक तो लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट है, ठीक है, फिर उसके बाद है it is less effective in controlling undesirable behavior of individuals with retardation. So it has an impediment because it does not work in children with retardation cases because they're already living in deprived environments. Okay, this is the second factor. You can take a note of it.